अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा असल च नेट स्लो है शायद इनकी अस्सलाम पहुंच। वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, वबरकातुहू। की चल रहा है जी? फिलहाल उस्ताद जी एक थल्ले आया है, आई थिंक कादियानी है ते देना चाह रहा है रिश्ता। वड्डा गोश्त मैनू मना है, छोटे वास्ते मन नहीं रहा। अच्छा, काल ते चक लो कादियानी साहब नू। असद किथे तू भाई गैबो गैब यार, खैरियत सी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शाह जी मैं आपको मैसेज करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा अभी अच्छा, वैसे भी अजान हो रही है पीछे, तो मैं बाद में करता हूँ आपसे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक, सही है, बेहतरीन हो गया जी। आसफ जिलानी साहब चले गए जी। आसफ जिलानी साहब, कोई हाल नहीं भाई। आसफ मौजूद हैं? आसिफ भाई का नैट भी उस्ताद जी वो घूमी जाता है, घूमी जाता है, घूमी जाता है, वाला चक्कर है। यार काल ते आना की थले टिप टिप लाई है, काल ते आ, वरना मैं तेन म्यूट करन लगा। चल ना से तुझी काल ते आनी ते आ जानी, ते इत्थों म्यूट है तू। चल यही हल है उस्ताद जी इन्हां दा। आओ है वे तू भी के खान दा फैन? ब्लॉक ना करो, लेकिन म्यूट थोड़ी देर वास्ते कर दो ताकि ਇਹਦੀ टिप टिप ते बंदे दी बंद होए। उस्ताद जी म्यूट नहीं, ब्लॉक नहीं किया, म्यूट ही किया उस्ताद जी। हाँ जी, कौन आए जी? खान साहब आए ने? खान दा फैन आया, थले गाना कट रहा है। अच्छा जी, जी खान साहब कोई गाना कोई सुनाओ, कोई दो चार। जी खान जी, चलो सही है। तो कोई नहीं, फिर तबलीग ते बढ़ गई। शाह जी ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੂਸਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰਨਗੇ ਬੜੇ ਜਨਾਬ। हाँ, ਤੇ शौक ਜਿਸ नाल। ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੂਸਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। कुछ भी नहीं, तबलीग नहीं करते, पता नहीं की मसला। की लै लेंदे ने मूंह च आसिफ भाई? ਚੋਚੋ। चूस नहीं। अच्छा, स्पेनिश च ना, स्पेनिश च जेड़ा तुसी लफ्ज़ इस्तेमाल कीता ना, एग्जैक्टली उसे चीज वास्ते इस्तेमाल होता जे, एग्जैक्टली उसे चीज वास्ते। अच्छा 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 खान साहब के फैन ये आए हैं, तशरीफ लाए हैं जी। भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? बोले भाई। सब भाई वो ओरल कर रहे हैं मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। निकली आवाज थोड़ी जी जी, थोड़ी जी आवाज बर्दाश्त करया करो जनाब, बर्दाश्त करया करो। फिर थोड़ी आप जी तुसी बह के जो मर्जी बोलो ते कोई दूसरा बोले ते ओनू थल्ले सुट देना है। आवाज बर्दाश्त करया करो, अपने च हिम्मत पैदा करो। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ, हाँ जी, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਦਾਤ ਗਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਨਾ, ਕਰੋ ਦਾਤ ਤੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਆਓ। ਗਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਲੈ ਆਓ, ਕਰੋ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਾਤ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ?
ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਸਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਰੇ ਸਹੀ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਵੀ ਲਵੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਵੀ ਲਵੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਣਾ ਦੱਸ ਕੀ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਦਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਿਜ਼ਵੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਮਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਿਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਚੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਅਲਾਮਾ ਹਰਕਤਾਂ ਖਾਦਿਮ ਹੁਸੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇ ਸਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਬੁਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਫ ਨਾ ਕਰੋ ਆਲਾ ਮੇਰੇ। ਓਏ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਬੜੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਯਾਰ, comment ਗੱਲ ਕਰ। ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਖਾਨ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਰਾੜ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਓਪਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਸੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਰਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਰਨ ਤੇ ਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਾਮਾ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੁਝ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁਜਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਵੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਜਰਿਆਂ 'ਚ ਬਾਲ ਬੂੜੇ ਵਾਲ ਬੂੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੋਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਗਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲ 'ਚ ਲਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਸੁਣੋ। ਪੈਦਾ ਕਰਿਓ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਓ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? राजपूत को भी कॉल पे कोई ना उठाए जब तक उस्ताद मोहतरम बात कर रहे हैं। राजपूत को भी कॉल पे कोई ना उठाए। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਸਦ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਦ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। असद भैया आ जाओ। ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ तो ਖਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਲ ਕੇ ਨਸੇ ਭੱਜੇ ਹੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਣੇ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਲੰਨ ਮਾਰਾਂ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। ਬਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ
ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਵਾੜਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਭੈਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਪੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ਈ ਭੈਣ ਦਾ ਛੋਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਮੰਜੀ ਯਾਰ, ਠੋਕੋ, ਮੰਜੀ ਠੋਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਮੰਜੀ ਕਰੋ, ਠੋਕੋ। ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਥੀਇਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਹਿਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ, ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਅਸੂਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। शाह जी हाँ जी, ये राजपूत आ साहब, जाते माइक हैं, खोलें जरा। ये शाह साहब राजपूत ने जो साहब। अभी गुफ्तगू फरमाई है कि ये लोग जो है अक्सर जो है ना आइडियां फेक बनाते हैं, फेक आइडियां बना के, और कभी कोई खान की आईडी बना के आ जाता है, ये कभी कोई किसी की आईडी बना के आ जाता है, और होते बेसिकली ये कादियानी है। अब आप देखें कि बाबा जी उनसे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को तकलीफ है ना, तो वो कादियानियों को है या जेलमी मरज़इयों को है। मुसलमानों की जितनी भी जमातें हैं ना, उनमें से किसी ने भी आज तक बाबा जी के बारे में अच्छे अल्फाज ही बोले हैं, लेकिन अगर दो ऐसे जमातें हैं जिन्होंने बाबा जी के खिलाफ बोले हैं और वो कादियानी है और जेल में मरज़ई हैं, बस। जी जी और बिल्कुल, बंदे की मैं जो कहता हूँ शनाख्त है कि ना उससे पता चल जाती है। आसफ के नेट का इशू बना है। अच्छा तो ये है कि लामा खादम थे रिजवी तो अपने गैर उनकी तारीफें कर रहे हैं। आज तक मैंने कोई देखा नहीं है कि मुसलमानों के मकातबे फ़िक्र में से किसी एक मकतबे फ़िक्र ने भी उस वली कामल के ऊपर कोई उंगल उठाई हो या कोई गलत बात की हो। तो आसफ जो बात कर रहे हैं बिल्कुल 110% ठीक है कि सिर्फ कादियानी या मरज़ई मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के फॉलोअर सिर्फ ये दो हैं कि जो जनाब अल्लामा खादम था रिजवी के ऊपर लान तान करते हैं, क्योंकि इनकी तरबियत है कि वो किसी को मानते नहीं अपने अलावा। मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी और मिर्ज़ा जूनियर जेलमी, इनके अलावा दुनिया के अंदर कोई बाबा ही नहीं है भाई। ये दो बाबे बचे हैं, ये दो बाबे इनके नज़दीक ठीक हैं। बकाया इनके अलावा जो भी है ना सब बाबे, बापों का तो खुदाई कोई और तो किताबों का कोई और इनकी तरबियत गालियों के ऊपर होती है कि बस अगले को जाके गालियां निकालना बस। और मतलब ये कि जब तरबियत ये हो कि माँ ते शै ही कोनी, प्यो ते शै ही कोनी, बाबा ते शै ही कोनी, तो जब बाबे बुजुर्गों के बारे, माँ बाप के बारे में जब ये तरबियत बाबा करेगा तो फिर आगे तो यही नतीजा निकलेगा ना। वो तो हर एक को गालियां निकालेंगे ना, वो किसी की इज्जत तो नहीं करेंगे। इज्जत की तवक्को तो नहीं कर सकते आप जी। ये राजपूत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी।
राजपूत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक म्यूट हटा के बोल सकती हैं आप। राजपूत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक म्यूट हटा के बोल सकती हैं आप। राजपूत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक म्यूट हटा के बोल सकती हैं आप। राजपूत भाई राजपूत भाई का भी ना नेट का कोई इशू हो गया या माइक का कोई इशू हो गया है, वॉइस डबल हो रही थी। तो और कोई बात कोई करना चाहें तो कर लें। कोई कॉलर भी अब नीचे आया है, कॉलर कौन आया है? राजपूत साहब दोबारा आए हैं। राज जी राजपूत भाई, आपके ना माइक का कोई इशू बना है या नेट का इशू है या माइक का इशू है? ना तो दलील देने की जरूरत है, ना इनसे बात करने की जरूरत है। जो बंदा बदतमीज है ना, उसको स्टार्टिंग ही उतार के नीचे इसको ब्लॉक कर दे। जरूरत नहीं है इनको दलील देने। दलील तो वो होती ना जो बंदा इल्म वाला हो, उनसे बंदा बात करे। समझते हैं आप? जी जी बजा फरमा रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसे बंदे को सबसे पहले ये कि वो गालियों पे आए तो उसका लहजा चेक करो, तो उसको फेंक के नीचे मारो, ठीक है? जरूरत ही नहीं है, हमने कौन से को मुकाबला करना है। हाँ जी बिल्कुल, हम नहीं मुकाबला करते और ना ही हमारा कोई ये मिशन है और बिल्कुल ना ही कोई हमारी तालीम है। बिल्कुल तो ऐसे लोगों को हम नीचे उतार दिया करते हैं। जी मैं भी यही कहना चाह रहा था उस वक्त के वो प्रकाश भाई ने कहा कि रुक जाए आप। मैंने चलो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें चुप हो गया। बिल्कुल ठीक है। किसी ने कोई बात करनी है, कोई कोई कादियानी या मर्दई तो आ जाओ यार, लाइव आ जाओ, लेकिन बात करो। हम तो दरवाजे खुले हैं हमारे, लेकिन बात करें, गालियां ना निकालें, बदकलामी ना करें, कोई इल्मी बात कर लें। कोई इतराज है तो करें आप इतराज। आप बताएं कि देखो जी कुरान में तो ये है, लेकिन तो तुम्हारा अकीदा ये है, तो मुझे इसके ऊपर इतराज है। हदीस में तो ये है, लेकिन तुम्हारा अकीदा ये है, मुझे इस पे इतराज। तो बात समझ आती है। कोई इतराज के अंदर वजन भी तो होना चाहिए ना। उसका बंदा फिर कुरान दी इसको देख करके उसका जवाब दे देते हैं, बस ये बात। मुफ्ती साहब, मैंने पूछना था, जो अबू लोलो फरोज है, ये किस इलाके से तल्लुक रखता था, किस एरिया से तल्लुक रखता था ये बंदा, ये जो मुर्ताद था? ये खारजी था, लेकिन ये गालबन इराक के किसी इलाके से ताल्लुक रखता था। हाँ जी और बिल्कुल, मुझे भी सुना था। तो आपने वो मिर्जा इंजीनियर की वो बात सुनी थी जब ये झूठ मंसूब कर रहा था मगीरा इब्ने शोबा की तरफ, वो हदीस बयान करके? हालांकि वो जो जब हज़रत उस्मान की एक सेकंड रुकना कर सकते। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इराक से मुझे एक बात याद आई। जी जी आप करबला मोहल्ला गए थे, तो वो आपकी वो सीरीज नहीं आई, उसकी वीडियोस की सीरीज नहीं आई? और यार ये है कि मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि वो इतना कीमती डाटा मेरा जिस हार्ड के अंदर है, वो हार्ड हुई है ख़राब। वो आसफ को भी कहा है, वो उसको भी नहीं बेचारे को कोई हिसाब किताब लगा, तो वो अभी उसका कोई एक्सपर्ट नहीं मिल रहा। उसके अंदर मेरी ये बड़ी किताबें हैं जो अभी छपने के लिए तैयार थी उसमें, और मतलब मेरा डाटा बहुत डाटा है, बड़ा कीमती डाटा। तो वो ये जो पराक वाली वीडियो सारी उसके अंदर थी। तो बस ऐसा ही है, वो अभी सही होगी तो फिर ये वो डाटा निकलेगा, तो मेरा काम कुछ आगे बढ़ेगा। ये मामला हो। नहीं उस्ताद जी, वो तो बड़ा कीमती डाटा था फिर उसमें तो। वो इराक वाली तो सारी वीडियोस उसकी तो हाँ एक जी हाँ सीरियल जी बननी थी उस्ताद जी पूरी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और भी बहुत कुछ उसमें है। बस आसफ दा कोई तरला मिन्त करो ना, सही करवा दे। जी मैंने तो कहा था कि इंशाल्लाह ताला मैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी वो, आप उससे भिजवा दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी वो। तेरा ना ही कोई व्हाट्सएप करता है, मैं पहले भी शिकवा नहीं किया चल तेरे गया नाल। अब शायद जी वो कल का परसों का चल गया हुआ जो है ना।
परसों से मैं ऑन है, अब राब्ता हम्म इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। सही हो गया, ठीक है। आसिफ भाई के मुतालिक उस्ताद जी ये है कि आसिफ भाई को वो 30 की स्पीड पे रेस दे के रखें तो ये काम करते हैं। वो जिस तरह नहीं उस्ताद जी, जब मोटरसाइकिल सर्दियों में स्टार्ट करते तो वो उसको रेस देते रहते हैं, घम करते रहते हैं ताकि वो गर्म हो। इस तरह इनको भी गर्म करना पड़ता है तब कोई काम करते हैं ये। हम्म। यार एक बात जर्नली सी करने लगा हूँ, सारे दोस्त सुनने। यार बराए करम भाई, हमारे सारे साथी जो हैं वो कोई काम करें यार, कोई थोड़ा सा कोई काम करें ताकि पता चले कि ये काम कर रहा है। कम अज कम कोई काम करें, कोई ना कोई काम लाजमी करें, कोई ना कोई लाजमी काम करें। जैसे आप कोई किताब लिखें, छोटी सी कोई रसाला लिखें, किसी एक किताब के कम अज कम आप मुसन्निफ हों। कोई चैनल बना लें, चैनल के आप मॉडरेटर हों जिस पे आप की इल्मी वीडियोस आती हों, या तहरीरी काम, तकरीरी काम, कोई काम लाजमी करें यार, कुछ ना कुछ लाजमी करें। उस्ताद जी वो एक नीचे बैठा कर तो रहा है, वो आपको कह रहा है कि एथीइज्म एक्सेप्ट कर लो। यार उस्ताद जी ये आपका एक मरीज है, इसको आपने 5 ml का टीका लगाया था, आज फिर लगा दे, महीना गुजर जाएगा इसका। लोकेशन खान फिर आ गया ये पागल जी इनको मुंह नहीं शायद आंदा ये कर ना दी कोई ये रिसाला वो नहीं जिंदा साडे पहले सिर चढ़िया रहना। वो पहले का ही एथीइस्ट है, वो कहते हैं मैं एथीइस्ट हूँ, वो पहले का ही शायद एथीइस्ट है। नाम अपना कैसा रखा हुआ है, लोकेशन खान। नहीं वो बेचारा शराबी आदमी है, तो ये इसीलिए तो शरीयत ने शराब को, जना को हराम कहा ना, कि ये अक्ल को मऊफ कर देती है। तो ये जानी होते हैं, शराबी होते हैं बेचारे, तो उसके अंदर ये दीन मजहब को भूल जाते हैं। वो कहते हैं नहीं हम ऐसी नहीं, क्योंकि उनके नजदीक सिर्फ दुनिया ही दुनिया होती है। तो यार दुनिया तू के अंदर थल्ले ये क्यों नहीं चीजें होता? बस ये काम करने के लिए आते हैं, वो अय्याशी करने के लिए, तो बस वो मिल जाती है तो वो उसके अंदर ही खुश हो जाते हैं। बस ठीक है, यही हमारी दुनिया है। शराबें पी के रखो, ज़नाकारियां करके रखो, वन सुवन्नी लड़कियां, वो बीच पे चले जाओ। हाँ जी, बस यही काम है, बस और कुछ भी नहीं। नहीं उस्ताद जी एक और काम भी है। हम्म एक और काम भी है। और मैं शर्तिया कहता हूँ कि इसके साथ जरूर हुआ होगा। हम जिन्स वो प्रस्ती, काम है हम जिन्स प्रस्ती। अगू थल्ले हो जा ते पिछों ऊंचे हो जा ते माड़ा नस्वार तो हमने हाँ रख दिया। हाँ, मैं वही तो कहना ना पिया कि हम जिन्स प्रस्ती अब देखें, वो भी ये शराब की ही बदौलत तो सामने आई है भाई, अक्ल उस्ताद जी माऊफ एक हो ऑफर आ जाती है गई ना। है, जी बिल्कुल ऐसी आपके लिए एक ऑफर आ गई उस्ताद जी नीचे। जी। कहना मेरे साथ चले बीच में, कहता है ओ वही बस काम उस्ताद जी करवाना चाहता है, ये करवाना पागल चाहता है। पागल होंदे ने बेचारे, बिल्कुल ही पागल। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। ठीक हो गया। अच्छा यार कोई है तो कोई नहीं, बस फिर एवं बहन का कोई फायदा फूदा कोई नहीं ते ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਐਥੀਇਸਟ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਬਈ। ਹੁਣ ਐਥੀਇਸਟ ਵੀ ਅੱਗੂ ਜਾਹਲ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਬਕ 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 ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਬਰਾਏ ਇਤਰਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਔਰ ਮਾਫੀਹਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? लोकेशन कान भाई आप सिर्फ नीचे से ना शेयर मार दिया करें। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖਾਨ ਆ ਗਏ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਲ ਤੇ। ਉੱਪਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਫਾਕਰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ جنوں چاہتا ہے عزتاں عطا فرماندا ہے، اللہ جنوں چاہتا ہے ذلتاں تو نوازدا ہے، یہ سب اللہ دے۔ واللہ خیر بے شک الرازقین، اللہ بہتر رزق دین والا ہے۔ انہیں رزق دے بے شک دروازے استاد اپنے بندے واسطے کھولے نے۔ من یتوکل کھولے علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ دے توکل اختیار کردا ہے پھر اللہ دے واسطے کافی ہوندا ہے۔ جدوں توکل اسی انساناں دے اتے اور دیگر چیزاں دے اتے جدوں کر لیں گے نا پھر مار کھاواں گے۔ جدوں توکل اللہ دے اتے بس ٹھیک ہے، پھر اللہ وہ پھر ایک دروازہ بند تے 100 کھول دے گا، وہ دی ٹینشن نہیں لئی دی ہوندی۔ تے رزق دی تے ٹینشن ہے ہی نہیں نا، رزق تے انسان دے پیچھے نسدا ہے۔ وہ ساڈے نا استاد بڑی سونی مثال دیندے سن، فرماندے کہ ایک بندہ مرن والا ہے، بستر مرگ تے پہنچ گیا، لیکن 5 کلو رزق اجے انہیں کھانا سی، او دا منہ بھی بند ہو گیا ہے بیماری دی وجہ تو، منہ بھی نہیں کھلدا پیا، تے 5 کلو رزق اجے او دے مقدر چ ہے کہ انہیں کھانا ہی کھانا ہے۔ ہن کی یہ ٹیکیاں دے ذریعے تے بوتلاں دے ذریعے سرنجاں دے ذریعے او دے تک رزق پہنچایا جاندا ہے کہ کھا کے جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے رزق تے تواڈے پیچھے پیچھے دوڑدا ہے پیا، رزق دی تو کوئی فکر نہیں۔ وہ تے مچھلی دے پیٹ دے وچ جڑا پال سکدا ہے، پتھر دے وچ کیڑے نو پال سکدا ہے، تے او تینوں رزق نہ دے گا، تو تے اشرف المخلوقات ہے پاگلا۔ رزق دی کوئی ٹینشن نہیں، ہاں کوشش کرو بس تھوڑی جی جنی ہو سکتی ہے، رزق حلال دی کوشش کر کے رکھو، بقایا رزق وہ اللہ پاک عطا کر دے گا، کوئی نہ کوئی ذریعہ وسیلہ تہاڈا ایسا بنا دے گا کہ جتوں تہانوں رزق پہنچدا رہے جنہ مقدر چ۔ تے کوئی غلط ہاتھ کنڈا اختیار نہ کرو بالکل بھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا بیٹھو یار، بس پھر کوئی بندہ تے ہے کو نہیں، کوئی دل کردا ہے یار کوئی علمی گفتگو کدھرے چھڑی ہوئے، کوئی بندہ بہ کے وچ کوئی حصہ لوے، لیکن کچھ بھی نہیں، کوئی ہوندا ہی نہیں، تے وہ پھر نا اکتاہٹ جی محسوس ہوندی ہے، ایویں یار بس فارغ ہی بہن دا فائدہ کی ہے۔ چلو جی رب رکھا، بیٹھو پھر ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔